Assalamu alaikum and welcome to Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम. The latest from the world of cricket is that India have won yet another ICC title. Last night they lifted the Champions Trophy 2025 in Dubai. The final that took place between India and New Zealand had a lot of people on the edge of their seats कि क्या होने वाला है, especially क्योंकि न्यूजीलैंड की इतनी कन्विंसिंग जर्नी रही टिल द फाइनल एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर रियली होपिंग a lot of fans around the world were really hoping that New Zealand would lift the cup because उनकी हिस्ट्री कुछ ऐसी रही हुई है, फाइनल्स में आते हैं, you know, they show so much promise and they end up losing the final. But on the other side, when you have a strong and balanced side like India, तो वो थोड़ा मुश्किल ज़रूर पड़ता है. और कल के मैच में भी हमने यही देखा कि although it was sort of a thriller towards the end, in the end it was India that were just far better, not just in that one match but of course through the tournament. We will take another look at what happened last night, पूरा revisit भी करेंगे and of course पूरे tournament को भी एक दफ़ा फिर revisit करेंगे and going forward अब हम cricket से क्या expect कर सकते हैं, what's next for Pakistan as well. We'll take a look at all of that in tonight's show. हमारे साथ of course हमें join किया हुआ है sports journalist एहसन इफ्तिखार नागी ने. अस्सलाम वालेकुम एहसन, great to have you on the show once again. How do you feel the Champions Trophy is over? We've talked so much about what the tournament means in the context of everything, but your thoughts on that final first of all. Yeah, walaikum salam Roha, and always a pleasure to be over here. I think it was a very good final. अगर देखा जाए तो वो proper attritional जो 50 over cricket होती है हमें वो देखने को मिली. Of course पाकिस्तान के अंदर high scoring matches हुए, दुबई के अंदर हमने देखा spin came into play, थोड़े से like mid to 50s वाले matches हुए. So it was a very good Champions Trophy overall. जहाँ तक अगर कल के मैच की बात करें, I think it was like two of the best teams, let's be honest, two of the best teams जो इस टूर्नामेंट की थी, they were competing. और उनको बेस्ट किस तरह बनाया गया, जो उनके कॉम्बिनेशंस थे, जिस तरह के उनके ऑलराउंडर्स थे टीम्स के अंदर, जिन्होंने स्ट्रेंथन किया ना सिर्फ उनके बैटिंग उनके बॉलिंग डिपार्टमेंट्स को भी. एंड आई थिंक यू नो इन द एंड probably the best side of the tournament won. And the reason I say best side, it's not only because जो पिछले 2 हफ्ते में हमने देखा, आप देखें जो पिछले 3 ICC इवेंट्स हुए हैं जिसकी काफ़ी बातचीत हो रही है, लाइक यू नो 24 में से 23 मैचेस इन्होंने जीते हैं एंड ODI वर्ल्ड कप का फाइनल, फिर T20 वर्ल्ड कप अभी कुछ ही महीने पहले जीतना, और उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल वो खेल के अभी आए हुए हैं रिसेंटली, जो रिसेंट ये एडिशन था उसका. तो इन द एंड अ गुड साइड वन, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला. आई थिंक मैच जो है वो किल रोहित शर्मा ने कर दिया था इन द वाइल्ड चेजिंग जो फर्स्ट पावर प्ले था उसमें. हम अक्सर बात करते हैं, हमने यहाँ से बहुत दफ़ा बात की कि पावर प्लेस कितने इंपॉर्टेंट हैं और वो हमें शो हुआ. क्योंकि आप देखें रोहित न्यू कि किस तरह से पिछले 4-5 मैचेस में दुबई की विकेट ने परफॉर्म किया है. And 76 of 83, that innings that won him the player of the match in the all important final. 3 छक्के इस इनिंग्स में लगे, 7 चौके इस इनिंग्स में लगे. एंड वही बात जो आपने की कि इस फॉर्मेट में भी इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू गेट दैट start for your team. This is what happened last night. Of course India lost the toss. ये भी एक series of tosses जो हैं हारने के बाद, but New Zealand wanted to bat first. 251 is all they could manage on that wicket. This was somewhat expected. KC के around score हो रहा होगा. Bracewell 53 not out, and of course Daryl Mitchell 63, Rachin Ravindra 37 and Glenn Phillips with 34. उसके बाद जी अगर हम बॉलिंग में देखें इंडिया की, तो स्पिनर्स ऑफ कोर्स वर डोमिनेंट, और दूसरी तरफ अगर आप रोहित शर्मा की इनिंग्स को निकालें भी तो श्रेयस अय्यर, KL राहुल, इनका ये जो बैटिंग अटैक है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस टूर्नामेंट में ही नहीं बल्कि ओवरऑल वाइट बॉल क्रिकेट में डिटर्मिनेशन शो की है. एंड ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड के बॉलर्स वन अनएबल टू कंटेन the fury that was Rohit Sharma, and of course later on the way that they followed up that chase. When you put India to chase in a final, you know, with all of that pressure and the number of times that they have done that in this format especially, Ehsan, do you really think कि उनको अब फ़र्क भी पड़ रहा है कि वो टॉस जीत रहे हैं, हार रहे हैं?
what's happening with that? I think जो एक जिस तरह आपने बात की देखें 252 at the end of the day it was a very good total for a final and considering जो conditions वहाँ पे थी जिस तरह हमने दुबई में देखा है कि across 100 overs pitch slow होती रहती है और last innings के अंदर बॉल जो है वो ज़्यादा टर्न करता है ये हमने कल भी देखा फर्स्ट इनिंग्स के अंदर सिर्फ 2 डिग्री टर्न था सेकंड इनिंग्स के अंदर 3.6 डिग्री टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को सॉरी तो इंडिया की जहाँ तक बात है देखें डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स अगर कंडीशंस भी उनके खिलाफ जा रही हैं टारगेट भी अच्छा लगा हुआ है दे आर अ साइड जो इतनी एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है आईसीसी टूर्नामेंट्स हाई प्रेशर इवेंट्स खेल खेल के और जिस तरह से उनका रन है इस टीम का जो रन है पिछले 3-4 साल में दे एक्चुअली नो हाउ टू टेक अवे मैचेस और इसके अंदर बहुत बड़ा रोल आईपीएल का भी है क्योंकि ये वो जनरेशन है जो बेसिकली आईपीएल से बड़ी हुई है ऑफ कोर्स बाकी क्रिकेट तो उन्होंने खेली है लेकिन जो इनका जो ग्रूमिंग हुई है सारी वो आईपीएल के अंदर हुई है एक हाई प्रेशर इन्वायरमेंट के अंदर आपने किस तरह थ्राइव करना है वो उनको वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और फिर जब आप इस सिचुएशन में आते हैं जहाँ पे आपको पता है एवरीथिंग इज़ ऑन द लाइन आप जब फाइनल खेल रहे होते हो स्कोर बोर्ड प्रेशर की क्या बात होती है फाइनल के वो यही है बिकॉज यू नो आपकी ये गलती जो है वो आपसे ये अपॉर्चुनिटी ले सकती है बट दे हैव बिकम सो यूज टू दीज कंडीशंस कि शायद अब उनके लिए उस तरह से इम्पैक्ट या उस तरह से उनके लिए प्रेशर फील नहीं होता अच्छा बट हाउ अनफॉर्चुनेट फॉर न्यूजीलैंड टू नॉट हैव मैट हेनरी जो कि इस टूर्नामेंट में इतनी ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे थे टू बी अ स्पिनर शॉट एंड टू फेस दैट टू हैव योर बेस्ट प्लेयर सिटिंग आउट इन द फाइनल आई मीन you've गॉट टू फील फॉर न्यूजीलैंड नहीं बिल्कुल ये तो है मैट हेनरी का बहुत बड़ा ब्लो था बिकॉज आप देखें ही डज नॉट ओनली बॉल विद द न्यू बॉल जो उनकी वेरिएशंस हैं इन द लास्ट पावर प्ले फ्रॉम ओवर्स 41 to 50 वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं और वो हमने देखा भी था जब इंडिया के साथ यहाँ पे मैच था दुबई में ग्रुप स्टेज का वहाँ पे मैट हेनरी ने क्या परफॉर्मेंस की उनकी वेरिएशंस कितनी काम आई तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड ने मिस तो किया मैट हेनरी को और देयर वाज अ रीज़न जब टॉस के ऊपर सेंटनर ने अनाउंस किया कि हेनरी इज सेटिंग आउट तो एकदम से क्राउड ने इतना ज़्यादा चीयर किया था लेकिन देन अगेन आई फील देखें प्रॉबली इंडिया ने जिस तरह का स्टार्ट लिया था उस स्टार्ट की वजह से बीच में हमें कोलैप्स भी देखने को मिला जब विराट कोहली की एकदम से विकेट गिर गई शुभमन गिल एकदम से आउट हो गए लेकिन दे हैड इनफ रन्स ऑन द बोर्ड उनके मिडल ऑर्डर को ये पता था कि हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ सेफ्टी नेट है जो हमने पावर प्ले में रन हमें मिल गए न्यूजीलैंड वर मे बी 20 रन 30 रन शॉर्ट व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया आप 250 का माइंड में रख के तो ऑब्वियसली नहीं चलते हो हमने पहले जो दुबई में मैचेस हुए हैं उसमें भी यही देखा है कि अराउंड 250 240 यही स्कोर्स हो रहे हैं बट देन ऑफ कोर्स दे वर नॉट इनफ व्हेन इट केम टू इंडिया देखें अगेन जब रन्स चेज हो जाते हैं तो आपको यही लगता है कि प्रॉब्ली द अदर टीम वाज शॉर्ट लेकिन अगर आप वैसे पूछे आई थिंक न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा कमबैक किया था जब डैरल मिचेल की इनिंग्स या ब्रेसवेल ने जो टुवर्ड्स द एंड जिस तरह से 50 किया ऑफ 30 ऑड बॉल्स वो बहुत अच्छा कमबैक था देन अगेन 252 वाज अ प्रीटी डिसेंट स्कोर अगर ये जिस तरह आपने मैट हेनरी की बात की इफ ही वर प्लेइंग तो प्रॉबली मैच और ज़्यादा फंसता या प्रॉबली थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट रिजल्ट एक डिफरेंट होता बट देन अगेन लोग अगेन इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है what makes it stand apart from the rest of the batting lineups is कि first of all उनको ODI क्रिकेट का आर्ट आता है उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो ODI क्रिकेट खेल सकते हैं विराट कोहली के अंदर श्रेयस अय्यर के अंदर केएल राहुल के अंदर अगर ये तीन लड़के आपके मिडल ऑर्डर के अंदर हैं तो यू हैव अ वेरी सॉलिड बैटिंग लाइनअप और ये भी एक परसेप्शन बनी हुई है कि ऑफ कोर्स रोहित शर्मा इज दैट पिलर ऑफ दिस टीम और रोहित शर्मा बट इन द पास्ट इवन व्हेन रोहित शर्मा की विकेट जल्दी गिरी है ऐसा नहीं लगता कि प्लान से हट रही है इंडिया की बैटिंग लाइनअप एंड ऑफ कोर्स उन्होंने इस बारे में भी बहुत दफ़ा बात की हुई है कि दे डोंट रिलाई ऑन देयर हाईएस्ट परफॉर्मिंग बैटर और वो उनके अराउंड अपनी बैटिंग को प्लान नहीं करते रोहित शर्मा की अगर हम इनिंग्स देखें जो फाइनल में थी जब वो नहीं भी वो स्टार्ट देते जब उनकी पिछले वर्ल्ड कप में भी हमने देखा जब जल्दी भी विकेट गिरती है आगे के जो बैटर्स हैं दे आर सो इक्विप्ड एंड सो स्किल्ड एसन कि दे आर रेडी टू initiate plan B and I think that's what really sets India apart from the other teams especially अगर हम पाकिस्तान के साथ comparison करें having
दैट प्लान बी कि अगर आपके टॉप पे बैटर नहीं चल रहे, ख़ास तौर पे पावर प्ले अगर आपने यूटिलाइज़ नहीं किया, फिर नंबर 3, 4, 5 एंड 6 स्पेशली उनका क्या रोल होगा. एनीवे अ लॉट टू एनालाइज क्योंकि इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट भी गया है. ऑफ कोर्स ओडीआई फॉर्मेट है, लेकिन एक नज़र अब डालते हैं विनर्स लिस्ट पे क्योंकि ओवर द इयर्स वी हैव सीन डिफरेंट टीम्स वेयरिंग दिस वाइट जैकेट along the years. Of course, it was Pakistan in the previous edition in 2017, beating India in the final, and usse pehle India in 2013, MS Dhoni ki captaincy mein. And prior to that, of course, we see 2 Australia wins under Ricky Ponting the Great. But Ehsan, ye jo Brian Lara wala Champions Trophy tha, what a time this was. You know, West Indies team अपनी पीक पे क्या ज़बरदस्त वो एरा था. और ये जो फाइनल इफ़ यू रिमेंबर इंग्लैंड प्रॉब्ली गेव इट अवे, जिस तरह से इंग्लैंड डोमिनेट कर रहा था एंड देन दे गेव द मैच अवे अगेन. एंड लुक, मुझे याद है आई वाज लाइक व्हाट, आई मस्ट हैव बीन 12 एट दैट टाइम. हाँ, 2004 में. सो आई रिमेंबर थोड़े बहुत मुझे उसके ग्लिम्पसेस याद हैं. बाहर खेलने गया एंड देन अच्छा वेस्ट इंडीज़ जीत गया. और फिर वो थोड़ा बहुत जब आप उसकी हाइलाइट्स देखते हो सो यू नो. बट देन अगेन लोग चैम्पियंस ट्रॉफी जो है अगर हम 2004 ऑनवर्ड्स देखें या 2006 ऑनवर्ड्स देखें, सो नाउ इट पिट्स बेस्ट अगेंस्ट द बेस्ट. और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे यू नो आई थिंक जो इस टूर्नामेंट का फॉर्मेट है, व्हाट मेक्स इट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड कप या अदर, मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि यहाँ के अंदर आपके पास यू हैव नो रूम फॉर एरर. ठीक है, हमने पाकिस्तान की भी एवरी मैच हैज यू नो पॉइंट्स के अलावा भी इतना कॉन्टेक्स्ट होता है हर गेम का. आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हम बैठे थे तो हमने तब भी बात की थी कि पाकिस्तान के पास टाइम नहीं होगा अपने कॉम्बिनेशंस को नेल करने का. तो जिस तरह से स्क्वाड बनाया जा रहा है ये इनको हर्ट करेगा. और वही हुआ, आप देखें न्यूजीलैंड से आप मैच हारे and then you went out of the tournament एकदम से. और आप अभी ट्राई सीरीज खेले हो, so you had the एक एक्सपीरियंस था against New Zealand and how wonderfully New Zealand utilized that 3 nation series. और उसके बाद जिस तरह वो इस टूर्नामेंट में नज़र आए, वही बात है कि आपने प्रिपेयर कितना किया हुआ है, आपका स्क्वाड कैसा है. दिस विल ऑल be exposed once you play in the Champions Trophy. The format is very cutthroat. But बहुत से लोग ऐसा ना ये भी कह रहे हैं कि Champions Trophy का अब फ्यूचर क्या है, ख़ास तौर पे अगर ये वनडे फॉर्मेट में ही खेली जाएगी तो what will be the future, relevance क्या होगी. Do you see this tournament modifying itself to match the current जो इस वक्त modern cricket चल रही है, या do you think कि this is the format that it should be played in अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं आगे? देखिए, मेरे ख्याल से हम ना बहुत ज़्यादा इस डिबेट में पड़ जाते हैं कि ओडीआई क्रिकेट का फ्यूचर क्या होगा. आप देखें 2019 वर्ल्ड कप था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. 2023 वर्ल्ड कप अनदर ह्यूज सक्सेस. चैम्पियंस ट्रॉफी आपके सामने है, पूरी दुनिया ग्लू हुई हुई थी इसको देखने के लिए. सो आई पर्सनली स्टिल फील कि ओडीआई क्रिकेट इज़ डूइंग फाइन. हम लोग शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचते हैं. हाँ ये ज़रूर है इसको, क्योंकि आपका पॉइंट आई अंडरस्टैंड, लेकिन ये आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑफ कोर्स इट शाइन्स थ्रू क्योंकि इट्स एन आईसीसी टूर्नामेंट, इट्स अ ग्लोबल टूर्नामेंट. बट बायलैटरल्स में देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी. आर पीपल ग्लूड to the bilaterals and will they buy a ticket, will they come to watch a one day game? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोग बायलैटरल्स को क्यों नहीं उतना फॉलो कर रहे व्हेन इट कम्स टू बायलैटरल ओडीआईज, बिकॉज आपकी जो T20 क्रिकेट है वो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है, आपकी फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई हुई है. उसकी वजह से जो आपके टॉप प्लेयर्स हैं उन्होंने कभी तो रेस्ट करना है, और फिर जब रेस्ट करने का टाइम आता है तो वो फिर देखते हैं अच्छा यार ओडीआईज नहीं खेलते हैं, या इवन जो आपके बायलैटरल T20 क्रिकेट है वो भी नहीं खेलते. तो इस वजह से जब आपके टॉप प्लेयर्स जो भी खेलेंगे, जिस भी फॉर्म की क्रिकेट होगी, लोग ग्लू होंगे. आपका फ्यूचर एट द एंड ऑफ द डे यही है कि आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं वो खेलेंगे आपकी सिर्फ आईसीसी इवेंट्स और आपकी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो एंड टेस्ट क्रिकेट. दैट्स योर फ्यूचर, क्योंकि उसके अलावा आप अपनी क्रिकेट को या आप अपने क्रिकेटर्स को मैनेज उस तरह से नहीं कर सकते हो. चलिए, ये एक बहुत अब एक्सटेंसिव डिबेट भी है और इसको हम मज़ीद भी टच करेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आगे बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे व्हेन वी विल बी लुकिंग एट मोर ओडीआई क्रिकेट बीइंग प्लेड. बट अभी वापस अब इसी चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर आते हैं. ऐसे a lot of frenzy in the media about, you know, before the Champions Trophy was, you know,
scheduled जो matches हैं, India आएगा, India नहीं आएगा, and of course in the end we all agreed on a hybrid solution जिसमें कि India played their matches on a neutral venue in Dubai, and it was decided कि future में जो भी India या पाकिस्तान में tournaments होंगे ICC के, either of the teams will not be touring either of the countries. तो अब आगे जो future में इसके repercussions होंगे, इसमें तो हमने देखा कि of course India did have some advantage playing on the same venue, and then having selected their squad according to the Dubai venue. They were spinner heavy. They knew wickets slow होती रहेंगी, उनको उन्होंने उसका पूरा advantage लिया. पहली बात, I want to have your opinion on it. Do you feel like India did have that advantage? Because a lot of the cricketing community has poured in their views on it, and they have said of course there were, because obviously अगर आप travel नहीं कर रहे हो, अगर आप एक ही जगह पे हो और आपको conditions भी similar मिल रही हैं, तो उसका advantage ज़रूर होगा, whereas teams on the other side have been traveling around Pakistan, फिर दुबई भी आ रही हैं. Do you think there was a bit of an unfair advantage to India? देखिए, first of all, before answering that, I want to say one thing that, you know, I think we should appreciate the Pakistan Cricket Board for pulling off, you know, such a tournament. ये tournament pull off करना इतना आसान नहीं था. कुछ reasons हैं. After almost 30 years. After 30 years. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने अरसे से इतना बड़ा event हुआ नहीं था. बिल्कुल. तो technically देखा जाए, जो भी आपकी ये सारे इस वक्त PCB की management है, ये इनके लिए एक first था. ICC का इस तरह से tournament कराना. फिर ऊपर से उससे पहले जिस तरह से स्टेडियम्स को रेडी किया गया, फिर उसके बाद यू नो ऑफ कोर्स जो लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई, सब कुछ, आई थिंक इट वाज अ जॉब वंडरफुली वेल डन. तो जहाँ पे हम पीसीबी को क्रिटिसाइज करते हैं, वी शुड एक्चुअली अप्रिशिएट जहाँ पे उन्होंने अच्छा काम भी किया. सो आई थिंक पुलिंग ऑफ दिस टूर्नामेंट, जिस तरह की विकेट्स पाकिस्तान में बनाई गई, जिस तरह के ग्राउंड्स थे, आई थिंक जो आपकी ओडीआई क्रिकेट है, इट हैज़ टू बी आजकल हाई स्कोरिंग क्रिकेट, वो आपने सारी कंडीशंस ले आउट की. सो आई थिंक इट वाज अ ग्रेट टेरिफिक जॉब डन. सो यू नो वेल डन पीसीबी. सेकेंडली कमिंग बैक टू, ऑफ कोर्स देखिए, मैं आपको बताऊं, जब मैं टीम के साथ था ना, द डे आई यूज्ड टू हेट द मोस्ट वाज द ट्रैवल डे. क्योंकि आपने उसके लिए पैकिंग करनी है एक दिन पहले, फिर ट्रैवल डे जो है उसके अंदर कोई आपका रेस्ट नहीं होता. 5-6 आवर्स छोटी सी छोटी जर्नी के ऊपर भी आपके लग जाते हैं. इंडिया ने वो नहीं किया. इंडिया के लिए ड्रेसिंग रूम्स नहीं चेंज हुए, इंडिया के लिए ग्राउंड चेंज नहीं हुए, एक ही होटल के अंदर हैं. और ऑफ कोर्स आप देखा जाए, उनका जो सेकंड पाकिस्तान मैच था, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड का मैच था, 6 दिन का गैप था, तो उनको रेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिला. सो डेफिनेटली एडवांटेज तो बहुत बड़ा था इंडिया के पास. जहाँ पे बाकी टीम्स 4 वेन्यूज़ के लिए अपने 16 डिसाइड कर रही थी, इंडिया एक वेन्यू के लिए 16 डिसाइड कर रही थी, 15 डिसाइड कर रही थी रादर. तो एडवांटेज तो ये है. बट देन अगेन, आप इस एडवांटेज को मिटिगेट कैसे कर सकते थे? आप प्रॉब्ली इंडिया को कह सकते थे कि सिंस यू हैव दिस एडवांटेज, आप अपने शायद 14 प्लेयर्स रख सकते हो स्क्वाड में, या अगर बाकी 15 रख लें, या बाकी टीम जो है एक एडिशनल प्लेयर रख सकती हैं. इस तरह आप इसको जस्ट ट्राई टू मेक अ लेवल प्लेइंग फील्ड. या आप ये कर सकते थे कि इंडिया को आप बीच में एक मैच अबू धाबी या शारजा दे सकते थे, कि कम से कम ग्राउंड की कंडीशंस उनके लिए बदलें. आई अंडरस्टैंड, क्योंकि एक हेस्ट के अंदर वो सारी चीज़ें एंड पे हुई. जस्ट राइट 2 months बिफोर द टूर्नामेंट, पीसीबी आईसीसी गॉट टू नो कि इंडिया इज़ पुलिंग आउट, या जो ऑफिशियली पता चला, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, इनको लास्ट ईयर के स्टार्ट से ही पता था इंडिया विल नॉट ट्रैवल. आईसीसी को ये जनवरी-फरवरी से ही पता था, तो शायद ये बातें उसी वक्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई. सो उस वजह से थोड़ा सा देखें, जो शीन है ऑफ दिस टूर्नामेंट वो डल तो हुई है, कि एक टीम एक ही वेन्यू पे खेलते हुए उसको खेलने के लिए डिफरेंट टीम्स जा रही हैं, वो थोड़ा सा उस तरह से इंडिया को टेस्ट नहीं किया गया, या इंडिया उस तरह से टेस्ट नहीं हुई. बट देन अगेन, उनके जो प्लेयर्स हैं, अगर हम ऑन फील्ड बात करें, आई थिंक दे डिड रियली वेल इन एक्सप्लॉइटिंग ऑल द एडवांटेज दैट दे हैव. क्रिकेट इज़ द गेम ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेजेस, राइट? आपने उनको मैक्सिमाइज करना होता है. रोहित शर्मा डिड दैट वेरी वेल. उनके स्पिनर्स दे डिड इट रियली वेल. तो वहाँ पे उनको ऑफ कोर्स वो हमेशा करते हैं, even when the advantages या the odds are not in India's favor, even then we see them putting out their best. उसमें तो कोई दो राय नहीं है. और ये आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि मे बी नेगोशिएट करते हुए, मे बी उस स्टेज पे वी कुड हैव रियली थॉट अबाउट इट. बट नाउ द डिलेमा एसन इज कि अगले जो 2 टूर्नामेंट्स आईसीसी के आ रहे हैं, जो विच आर स्केड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन इंडिया
एक तो कम्प्लीटली इंडिया में खेला जाएगा विमेंस वर्ल्ड कप, और जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, जो कि बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका खेला जाएगा, उसमें भी अब यही डिलेमा होगा, बिकॉज पाकिस्तान अभी तक जो तय हुआ है, सो फार फ्रॉम व्हाट वी नो, पाकिस्तान विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू इंडिया टू प्ले इन दोज टूर्नामेंट्स. हाउ विल दैट इफेक्ट द टूर्नामेंट ओवरऑल, बिकॉज उसमें भी आपको फाइनल के लिए और सेमीफाइनल के लिए वेन्यूज़ जो है वो अगर क्वालिफाई पाकिस्तान करे, यू विल हैव द पॉसिबिलिटी कि आपको वो भी स्प्लिट करने पड़ेंगे. आई मीन इट डज रियली मेक थिंग्स मच हार्डर फॉर एवरीवन हु इज प्लेइंग इन द टूर्नामेंट. मच हार्डर एज वेल. एंड आई थिंक देखें, कहीं ना कहीं आपको ये भी फील होता है कि प्रॉबली जो वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड का कॉन्सेप्ट है या जो इंटेग्रिटी ऑफ द टूर्नामेंट है, वो भी ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ आपको होती नज़र आती है इन चीज़ इस वजह से. क्योंकि आप देखें, एंड देन अगेन इस सब के अंदर लॉस क्रिकेट का है. ठीक है, अभी अगर हम ये जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान की ये जो जियो पोलिटिकल टेंशंस क्रिकेट फील्ड के ऊपर अब आ रही हैं, इसके अंदर लॉस क्रिकेट का और किसी का नहीं है. And to be fair, Pakistan did travel to India for the ODI World Cup, so this was not something that Pakistan were fixated on कि हमने नहीं करना. In their own goodwill and in the good faith towards showing sportsmanship, Pakistan did travel to India last year. तब भी tensions थी, but it was like good for everyone कि that happened, but unfortunately this time it did not happen. और एशिया कप में भी हमने देखा कि यही पूरा हाइब्रिड मॉडल बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ, बिकॉज अगेन उसमें तो आपको याद होगा कि कितना टाइट स्केड्यूल था, एंड प्लेयर्स डिड suffer from injuries, and उनको niggles थे, injuries थी because of such a hectic schedule. But Ehsan, it does really taint the whole experience of watching a tournament. And जो आपने word use किया, it's very accurate, level playing field. So for the other teams in the tournament, let's for a moment let's forget about India and forget about Pakistan, but the other teams in the tournament, अब आप न्यूजीलैंड को ले लें, साउथ अफ्रीका को ले लें, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली थी इस टूर्नामेंट में. आप बाकी बड़ी टीम्स को ले लें, आप छोटी टीम्स को भी लें जिनके लिए ये टूर्नामेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. पूरा उनका साल डिपेंड करता है ऑन हाउ दे डू. तो इट्स अनफेयर टू दोज टीम्स एज वेल दैट ऑल द फोकस इज बीइंग केप्ट ऑन फैसिलिटेटिंग स्पेसिफिक टीम्स ओनली. नहीं देखिए, इसमें लेट्स बी मोर ओपन, नॉट स्पेसिफिक टीम बट टू अकोमोडेट इंडिया. बट और हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर एक चीज़ और भी देखी, एंड देयर इज एन अनदर एलिमेंट टू ऑल दिस डिबेट एज वेल. हमने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ये भी देखा कि काफ़ी टीम्स, जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया से देखा एक स्टेटमेंट आया अबाउट इंडिया गेटिंग दी एडवांटेज. हमने न्यूजीलैंड से देखा, हमने साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को ये बात करते देखा, हमने कमेंटेटर्स को नॉट ऑफ कोर्स ऑन द आईसीसी ब्रॉडकास्ट, लेकिन बाकी जगहों पे बैठ के ये बात करते देखा. बट आप जब बात कर रहे हो, मेरे ख्याल से शायद उनको उससे पहले, मीडिया में बात करने से पहले, अपने होम बोर्ड से बात करनी चाहिए थी कि व्हाई डिड यू एग्री ऑन दिस. अगर न्यूजीलैंड का प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, साउथ अफ्रीका का प्लेयर मीडिया में आके ये बात कर रहा है, तो क्या उसने अपने होम बोर्ड के चेयरपर्सन या चीफ एग्जीक्यूटिव से पूछा कि जब ये सब नेगोशिएशंस चल रही थी या ये सब जब फार्मूला लेआउट हो रहा था, आपने एग्री क्यों किया? डिड नॉट यू नो कि हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, हमें वहाँ पे इंडिया से खेलना पड़ेगा, हम फाइनल इंडिया के साथ खेल सकते हैं, हमें कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा. तो अगेन देखें, दिस यस आपको एक पावर है इस वक्त क्रिकेट के अंदर जो इंडिया के पास है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको मैक्सिमाइज करता है, एक्सर्ट करता है अपना कंट्रोल. लेकिन जो बाकी 8, 9 या बल्कि इनफैक्ट 11 फुल मेंबर बोर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वाई डोंट दे टेक अ स्टैंड? तो हमें उस चीज़ को भी देखना है. यस, एक जो भी ये दुनिया का कानून है, ये दुनिया के असूल हैं कि जिसके पास पावर होती है वो अपनी पावर दिखाता है. हमें इंटरनेशनल जो इस वक्त वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर भी ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन बाकी बोर्ड्स क्या कर रहे हैं, हमें वो भी क्वेश्चन करना है. हमें बाकी बोर्ड से भी पूछना है कि यार आप क्या कर रहे हो. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. और आई थिंक यहाँ से ही आगे के लिए भी अब एक रोड मैप प्ले होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू नेगोशिएशंस एंड व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग that all the teams that are participating in the tournament, they get that level playing field, which is so integral and so fundamental to the idea of sports. यहाँ पर एक हम short break ले रहे हैं, but when we come back, of course, हम future की तरफ अब थोड़ा देखेंगे. ट्रॉफी जो है वो ख़त्म हो गई है, but there's still so much cricket waiting for you.
Thank you so much for staying with us. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड की. 5 T20s खेले जाएंगे फ्रॉम द 16th to the 26th of March, और उसके बाद हम देखेंगे 3 मैच ODI सीरीज बिटवीन द टू टीम्स जिन्होंने रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही क्रिकेट खेली है एक दूसरे के अगेंस्ट. लेकिन न्यूजीलैंड ऑफ कोर्स हैव बिन द बेटर टीम, स्पेशली अगर आप इस ट्राई सीरीज़ में देखते बिफोर द चैम्पियंस ट्रॉफी, एंड ऑफ कोर्स played the Champions Trophy final as well, and now they will be up against Pakistan once again in their home conditions. 3 मैचेस ही खेले जाएंगे, नेपियर में, हैमिल्टन में एंड माउंट मैंगनोई में. एसन मोर वन डे क्रिकेट बट नॉट अ लॉट ऑफ इट. हमने लास्ट ईयर उससे भी पहले बहुत कम से कम अब होती जा रही है बायलैटरल ODI क्रिकेट. व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज 3 ODIs एंड हाउ कैन पाकिस्तान मेक इट काउंट? देखिए, आई थिंक इसके अंदर 2027 वर्ल्ड कप तो है, अभी 2 साल दूर है. ये 2 साल कैसे पता गुजर जाने पता नहीं चलेगा. ऑफ कोर्स इस साल ज़्यादा फोकस T20 क्रिकेट का रहेगा, बट यू कैन नाउ स्टार्ट टू थिंक कि हमें साउथ अफ्रीका में कौन से प्लेयर्स अपने लेके जाने हैं. एंड देन अगेन यहाँ से अब आपको जो हमने लास्ट सेगमेंट में बात की वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि आप क्लैरिटी कितनी दे रहे हैं अपने प्लेयर्स को. आई सॉ द स्क्वाड. अब्दुल्ला शफीक मेक्स अ कम बैक, इमाम उल हक इज़ इन, तो इसका मतलब है ये आपके 2 ओपनर्स हैं. फ़खर जमान अभी नहीं है, साइम अयूब अभी नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो नहीं है क्योंकि वो दोनों इंजर्ड हैं. सो डज बाबर गो बैक टू नंबर 3? और अगर बाबर इज़ नाउ गोइंग बैक टू नंबर 3 तो क्या आपने जो चैम्पियंस ट्रॉफी में ये फ़ैसला लिया था कि जी वो क्योंकि पहले ओवर में ही बैटिंग करने आ जाते थे साउथ अफ्रीका टूर के ऊपर, और इस वजह से उन्होंने वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी थी, सो ही कैन बी अ गुड ओपनर, तो क्या अब आप उस रेटोरिक से वापस जा रहे हैं, अपने उसको आप नलिफाई कर रहे हैं? एंड देन अगेन जो हमने शादाब की बात की, अब्दुल्ला शफीक, मैं इसी पे आने वाली थी कि अब मतलब how does he come back into the side? Like, you know, by the way, I'm a big fan of these guys जिनकी मैं भी ये बात कर रहा हूँ. But then again, जब आप इस तरह से impulsive decisions करते हो, आप इन players को भी मसले में डालते हो. आप इन players को additional scrutiny के लिए तैयार कर देते हो कि आप इनकी और scrutiny करो. अब्दुल्ला शफीक ने इशाल एसोसिएट्स के लिए इस प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी में 6 गेम्स खेले. उसमें से उन 12 इनिंग्स में उन्होंने 1 सेंचुरी किया, 1 हाफ सेंचुरी किया. तो डू यू थिंक कि वो आपने, क्योंकि अगर उनको ड्रॉप किया कि अगर वो 3 नॉट्स उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए, ये इन 12 इनिंग्स के अंदर ये परफॉर्मेंस मेरिट करती है क्या उनका रिटर्न? और देन अगेन उन्होंने वनडे क्रिकेट तो खेली नहीं. सो देन अगेन आप एक प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, जब से आपने 18 रीजन्स की टीमें खिलाना शुरू की हैं, 8-9 डिपार्टमेंट्स की टीमें खिलाना शुरू की हैं, आपकी ज़रा फर्स्ट क्लास क्रिकेट का लेवल भी ज़रा कंपेटिटिव लेवल नीचे चला गया है. एंड इट्स नेचुरल कि जब आप ज़्यादा लोग खेल रहे होंगे एक चीज़, तो वो वहाँ पे कंपेटिटिवनेस ज़रा कम हो जाएगी. चैम्पियंस ट्रॉफी इसलिए ज़्यादा कंपेटिटिव थी क्योंकि बेस्ट 8 टीम्स खेल रही थी. अगर यही आपका वर्ल्ड कप जो है अभी वो 16 टीम्स या 24 टीम्स का हो जाए तो उसका कंपेटिटिव लेवल नीचे चला जाएगा, जो हमें नज़र भी आता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर कि फर्स्ट राउंड में किस किस्म के मैचेस हो रहे होते हैं, और फिर उसके बाद जब आप बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट जाते हो T20 वर्ल्ड कप में कैसे मैचेस हो रहे होते हैं. सो गेम सेम गोज़ फॉर द फर्स्ट क्लास भी. तो क्या उन टीम्स के खिलाफ उस कंपेटिटिव लेवल में परफॉर्म करना, और वो भी 1 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी, does it merit a comeback? And a lot of such names we can see in this squad as well. और हम उनकी अब इस तरह मोहम्मद अली का नाम शामिल किया गया है. अगेन वही बात है कि ये कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई प्लेयर एकदम से आए नहीं है. he has been part of the system. why was he not included in the ODI squad? And then of course सुफियान मुकीम, जिनको हमने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस रिसेंटली देखी भी थी. Again now he is part, and it's a good thing. We are not at all suggesting कि ये players नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, और ये players ही हमारा future हैं. But वही बात जो ऐसा आप कर रहे थे कि एक रोड मैप के ज़रिए आपको पता लगता है कि ये प्लेयर्स आपके प्लान्स में हैं. चैम्पियंस ट्रॉफी में आपके कुछ और प्लेयर्स होते हैं, एंड राइट आफ्टर द चैम्पियंस ट्रॉफी हैज़ एंडेड वी आर सीइंग अ मिक्स ऑफ न्यू प्लेयर्स. T20 में भी एंड ODI क्रिकेट में भी. नसीम शाह इज़ इन द ODI स्क्वाड. योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हिम, डू यू थिंक मे बी इस चैम्पियंस ट्रॉफी में उनका वो मार्क नहीं, ही कुड नॉट हिट दैट मार्क जो उनसे एक्सपेक्टेशन होती है, ख़ास तौर पे इन ICC टूर्नामेंट्स? लास्ट वर्ल्ड कप में उनको जो इंजरी हुई, एशिया कप में,
everybody was saying कि Naseem Shah नहीं है, Naseem Shah नहीं है, and do you think he really missed the mark this time? देखिए नसीम अगेन आपकी फास्ट बॉलिंग यूनिट का इस वक्त मसला जो है वो ये है कि आपकी जो नई बॉल है ना वो शायद उस तरह से बेहतर नहीं हो रही जिस तरह से हमें एक्सपेक्टेशंस हैं. एंड देन अगेन नसीम सिंस हिज कम बैक ही हैज़ नॉट बीन देयर जो बिफोर हिज इंजरी वो जहाँ पे थे. शाहीन भी अगर आप देखें जो उन्होंने बॉलिंग की वो मिडल ओवर्स में आके ज़्यादा तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर टू विद द न्यू बॉल. Because the batters around the world now have started picking up Shaheen and they all know कि शाहीन ने पहला ओवर कहाँ पे कराना है. आई थिंक उसके साथ बॉल अंदर आनी है, everybody knows, उनको वो स्विंग भी मिलनी है, उन्होंने अपनी पेस तो खैर अब इम्प्रूव कर ली है. That is But the do you reason- think कि now it's time for even Shaheen Shah Afridi to think of some variations and think of maybe changing the pace up a little bit? देखें जो आपके फर्स्ट 10 ओवर्स हैं ना उसके अंदर वेरिएशंस इतना रोल प्ले नहीं करती हैं. आई थिंक पाकिस्तान के जो पेसर्स जहाँ पे थोड़ा सा लैक कर रहे हैं इट्स द डिसिप्लिन बॉलिंग. ठीक है, उसके अंदर हम जहाँ पे देख रहे हैं जो मसले आ रहे हैं वो लाइंस के ज़्यादा मसले आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लेंथ्स. जब आप ज़ाहिर बात है जब सिर्फ दो प्लेयर्स बाहर हैं, एक आपकी विकेट बहुत अच्छी है बैटिंग के लिए, अगर आप थोड़ी सी भी लाइन में अर्न करते हैं तो वहाँ पे आपको बाउंड्री पड़ती है. और पाकिस्तान का भी ये थोड़ा सा इशू चल रहा है. बट देन अगेन आप मोहम्मद अली को ले आए, terrific addition. Muhammad Ali deserves to be there. And Wasim Junior is also in Wasim the Junior squad. makes a comeback in Akif the Javed. side. Akif Javed is there in the side जो कि most probably debut करेंगे. But क्या आप श्योर हो कि 2027 वर्ल्ड कप के अंदर शाहीन नहीं होगा, हारिस रऊफ नहीं होगा? क्या आप ये क्या बात कंफर्म्ड है? क्या ये बात उन दोनों को पता है? क्या ये बात आकिफ या मोहम्मद अली को पता है कि वो दोनों नहीं होंगे? सो नाउ अब हमने स्टेप अप करना है. सो दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम इज़. आप देखें यू हैव टू, आपने एक प्लान देना है टीम को कि यार ये है, अब यही है, नाउ लेट्स स्टिक विद इट. जिस तरह हम इंग्लैंड की बात करते हैं ना, वहाँ पे फिर जेसन रॉय को कह दिया था, जॉनी बेयरस्टो को कह दिया था कि भाई तुम ही हो, मोइन अली को कह दिया था तुम ही हो, अब जाओ जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह खेलो. क्योंकि हम ये बात करते हैं कि एकदम से लड़के आप देखेंगे अगर अपने शेल्स में खेल रहे हैं, वो क्यों खेल रहे हैं? बिकॉज उनको पता है हम अगर अच्छी एवरेज, अच्छी इकोनॉमी पे बॉल कर देंगे या थोड़े से अच्छे स्ट्राइक रेट पे रन कर देंगे या अच्छी एवरेज, क्योंकि पाकिस्तान में एवरेज देखी जाती है, पाकिस्तान में एवरेज काउंट की जाती है, हम कर देंगे, हमारी जगह सिक्योर हो जाएगी. तो उसके चक्कर में बेशक आप एवरेज प्लेयर बन जाएं, ठीक है ना, वो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा उसके लिए. यही प्रेशर रहेगा कि आपने स्कोर बोर्ड में अपने आप को जस्टिफाई करना है. बेशक आपने जो है वो 40 बॉल पे 35 करके आप आउट हो रहे हैं, जिसका कोई टीम को ना यूज़ रहा है, ना आप उस पर बिल्ड कर सकें. और अगेन स्ट्राइक रेट की भी एक टाइम पे बड़ा बज़ वर्ड चला था कि स्ट्राइक रेट स्लो है बैटर्स का वनडे क्रिकेट में, ख़ास तौर पे ओपनिंग में. और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान को भी रहा है, उसकी वजह से भी हमने देखा कुछ ओपनर्स को ड्रॉप किया गया, नए ओपनर्स लेके आए गए. अब इस ओडीआई स्क्वाड से हमें यही उम्मीद है कि अब्दुल्ला शफीक हैं, साथ आप कह रहे हैं कि उमैर, आपने कहा है उमैर बिन आसिफ होंगे. नहीं, उमैर तो T20 स्क्वाड में, यहाँ पे ऑफ कोर्स अब्दुल्ला और इमाम ही आपके ओपनर्स होंगे. इमाम उल हक का अगेन यही मैं अब इस पे मैं आना चाह रही थी कि इमाम उल हक का अब क्या रोड मैप है, उनको क्या क्लैरिटी दी गई है कि वो अब अगले कुछ टाइम के लिए हमारे प्लान्स में है, नहीं है? लेकिन अब एक चीज़ रोहा, एक चीज़ मैं अब आपको बताऊँ, ये आपने बड़ी अच्छा किया, ये आपने पॉइंट रेज कर दिया. इमाम उल हक came back into the team after performing at first class level. ठीक है, उन्होंने स्कोर किया, उससे पहले उन्होंने चैम्पियंस वनडे में भी परफॉर्म किया, सब कुछ किया. जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात होती है तो हेड कोच ये कहते हैं कि हमने इमाम को बता दिया था कि वो कौन सी हरकतें हैं जो नहीं करनी, जिसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए थे. हमने उनको कहा आप उस पर काम करो. तो यार बास ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें होती हैं, बास वो बातें होती हैं जो आप माइक्स पे आके, आप कैमरास पे आके नहीं करते हो. देन अगेन अब आप इमाम की आपने क्या पब्लिक इमेज बना दिया कि वो क्या ऐसे मसले थे जिसकी वजह से इमाम को ड्रॉप किया गया. जस्ट स्टिक टू द परफॉर्मेंस. देखिए आप समझिए ना, एक तो प्लान नहीं है, फिर ऊपर से हमारी कम्युनिकेशन का बहुत इशू है. ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ये जो हमारे नैरेटिव्स होते हैं, ये सिर्फ उस कमरे के हद तक लोग नहीं होते, ये पूरी दुनिया ने देखना होता है. पूरी दुनिया देखती है आपकी टीम्स को, आपकी मेंटालिटी को, आपकी थिंकिंग को. जो आप मीडिया में आके बात करते हो उसकी बेसिस पे स्क्रूटिनाइज और एनालाइज किया जाता है. हम भी यही कर रहे हैं इस वक्त बैठे हुए. तो यू नीड टू बी अ बिट मैच्योर, यू नीड टू बी अ बिट
a bit level headed کہ آپ کیا بات کر رہے ہو, کس پلیئر کے بارے میں کہہ رہے ہو, وہ اس پلیئر کے لیے کس طرح سے پرسیو کی جائے گی, اس پلیئر کی کیا پرسیپشن بنے گی. اب امام اور عبداللہ آ گئے ہیں, اگر آپ نے ان کو ایز این اوپنرز رکھا ہے, یو آر آئی تھنک ویری فارچونیٹ کہ ابھی آپ کے پاس فخر اینڈ سائم آر ویٹنگ ان دا ونگس. ٹھیک ہے جی, وہ ابھی ریکوری کر رہے ہیں, سب کر رہے ہیں, اس کے بعد وہ آ جائیں گے, آپ کا ٹاپ آرڈر پھر اسٹرینتھن ہو جائے گا. اب آپ ان کو کھلاؤ, جب تک وہ نہیں آ رہے ان دونوں کو, ناؤ دے شوڈ بی گیون اے پراپر رن. proper run and there is a lot of time to go. آپ نے جس طرح کہا دونوں فارمیٹس میں till the next respective World Cups. احسن افتخار ناگی, thank you so much for your time, really appreciate your analysis. I hope آپ لوگوں نے شو انجوائے کیا ہوگا. پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی not the most ideal result, but here's hoping کہ نیو زیلینڈ bilateral series سے we are able to extract some good opportunities, especially for the players who have made either their comebacks or they're going to debut in this series. So all the best to the Pakistan cricket team for this bilateral challenge. اپنا بہت خیال رکھیں. Good night. Ji, welcome back. You're watching Sports Tonight. The Champions Trophy might be over, but there's still so much white ball cricket waiting for you. Pakistan cricket team نے تھوڑا ڈسپوائنٹ ضرور کیا اس ایڈیشن آف دا چیمپئنس ٹرافی میں, اور او ڈی آئی کی جتنی بھی ہمیں ایکسپیرینس کم تھا کھیلنے کا اوور دا پاسٹ ایئرز, ناٹ اے لاٹ آف او ڈی آئی کرکٹ وی سو being played between nations, but when it comes to T20 action, you can always count Pakistan in. Of course, there's so much more happening. Bilateral series جو ہیں resume ہو گئی ہیں نیو زیلینڈ کے اگینسٹ. ہم اب ایک bilateral T20 and ODI series کھیلنے والے ہیں very very soon. The squads are out, the schedules are out, تو آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں. پہلے جی T20 series 5 میچز کی ایسن کھیلی جائے گی جو کہ 16 سے شروع ہوگی مارچ اور 26 مارچ تک کھیلی جائے گی, اور ایسن بڑے خوبصورت وینیوز پہ اکراس نیو زیلینڈ, کرائسٹ چرچ, ڈونلڈن, آکلینڈ, ماؤنٹ مونگنوئی اینڈ ویلنگٹن and Auckland, of course, how could I forget. کیا خوبصورت ٹور ہونے والا ہے, scenic, but this is what the schedule looks like. And of course اب ہم آتے ہیں اسکواڈ کی طرف. there is so much to unpack from this squad, but سب سے پہلے احسن ہمارے نئے کپتان T20 آئیز میں سلمان علی آغا, on the back of some great performances in white ball, a lot of improvement that we have seen over the last 2-3 years in this guy, and now he will be leading, he will be the face of the new T20 squad. Ehsan, how do you rate Salman Ali Agha as a captain, and do you think he has a lot of responsibility now going forward? دیکھیں, اگر ہم اس وقت پیورلی نمبرس کی بات کریں تو پرابلی اس کے اوپر دیر از ناٹ مچ ٹو ڈائسیکٹ آن سلمان علی آغا, کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی نہیں ہے. لیکن بیکاز میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے, آئی نو ہی از اے گریٹ تھنکنگ کرکٹر. ان کو کرکٹ کی نوانسز ان کو سمجھ آتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ T20 فارمیٹ کی یا اس وقت اس جو اب جس طرح وائٹ بال کرکٹ کھیلی جا رہی ہے اس کی ڈیمانڈ کیا ہے, اینڈ پرابلی اسی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو کیپٹن اپوائنٹ کیا اور پھر ان کے ساتھ شاداب خان کو لے کے آئے ہیں, بیکاز ناؤ دے ہیو ریئلائزڈ کہ او اچھا ہمیں تو اگریسو برانڈ آف کرکٹ کھیلنی ہے. سو گڈ لک ٹو سلمان علی آغا. And then Shadab Khan's come back as well, اس پہ بھی بات کریں. How will you justify his comeback? Are you for it? Are you against it? Because it's not like Shadab has not been vice captain before. It's something he's used to in the past. جب ٹائم آیا ان کو نہیں کپتان بنایا گیا, even though وہ وائس کیپٹن رہے تھے. لیکن do you really think he adds something in this team as far as bowling is concerned? Because that has been a problem area for him for quite some time. دیکھیں, شاداب کو ڈراپ کیا گیا تھا بیکاز ہی واز ناٹ ایبل ٹو پرفارم. آپ ان کو ٹیم میں لے کے آ رہے ہیں وداؤٹ اینی نوٹیبل پرفارمنسز, جس طرح نیو زیلینڈ لے کے جا رہے ہیں, آپ نیو زیلینڈ لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا شاداب نے میرے خیال سے اس ٹائم کے اندر, چونکہ عاقب جاوید نے جب یہ بات کی, انہوں نے کہا ہم نے شاداب کو کہا تھا آپ جا کے لمبی بالنگ کریں. انہوں نے ان کی بیٹنگ کی تو بات کی نہیں, انہوں نے کہا ہم نے ان کو کہا تھا آپ جا کے لمبی بالنگ کریں, انہوں نے لمبی بالنگ کی.
तो इस वजह से हमने इनको सेलेक्ट किया. और इन्होंने जो लंबी बॉलिंग की उसके अंदर 4 फर्स्ट क्लास मैचेस, अभी जो रिसेंटली कंक्लूडेड प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी थी जो बाय द वे पीटीवी जीता है, सो कंग्रेचुलेशन. Congrats, yay, PTV, great job. उसके अंदर इन्होंने 4 मैचेस, 4 फर्स्ट क्लास मैचेस के अंदर सिर्फ 4 विकेट्स ली हुई हैं. सो देखें अगेन, जब आप इस तरह से एकदम से प्लेयर को टीम में ले आते हो तो आप प्लेयर को और अंडर प्रेशर कर देते हो, क्योंकि सवाल उठना शुरू हो जाते हैं. इसका बड़ा आसान तरीका था शायद आपको वापस लाने का. पाकिस्तान ने इस टूर के बाद, इन 5 T20s के बाद अभी 22, 23 T20 इंटरनेशनल्स और खेलने हैं बिफोर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो 2026 का है. 2-3 दिन बाद नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है. आप इनको कह सकते थे कि शादाब, वी आर सेटिस्फाइड, आपने जो फर्स्ट क्लास में किया है, नाउ गो इन द नेशनल T20 कप, वहाँ पे जाके परफॉर्म करो, वहाँ पे परफॉर्म करो, PSL में परफॉर्म करो. देन बांग्लादेश आर कमिंग इन में, हम आपको बांग्लादेश के खिलाफ खिलाएंगे, उसके बाद यू विल बी कमिंग, ताकि हमारे पास भी एक जस्टिफिकेशन ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक इन द टीम. तुमने भी T20 क्रिकेट उस लेवल की खेली हो, शादाब ने भी T20 क्रिकेट कहाँ खेली है पिछले कुछ अरसे में. आपका नेशनल T20 होता, आपका PSL जो प्रीमियर T20 टूर्नामेंट है वो खेल के आ रहे होते, उसका भी एक कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता. सो देखिए, मसला हमारी सिलेक्शन का, हमारे थॉट प्रोसेस का यही है कि हम फैसले वो कर देते हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर रैंडम अकाउंट्स ट्वीट कर रहे होते हैं. हम कुछ सोच समझ के फैसला नहीं करते. मैं इसके अंदर एक छोटी सी बात रोहा आपको बताऊं. 26 फरवरी को आकिब जावेद ने प्री बांग्लादेश मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो वॉश आउट हो गया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का. 4 दिन बाद 4 मार्च को, जो कि तकरीबन 6 दिन बनते हैं, आकिब जावेद ने स्क्वाड अनाउंस किया. अब मैं उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि 6 दिन में आकिब जावेद ने अपने आप को किस किस तरह कॉन्ट्राडिक्ट किया है, विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स के पीछे कोई थॉट नहीं है. ये जो स्क्वाड बना है ये किसी थॉट की प्रोसेस से नहीं बना. नंबर 1 कहा गया कि जी इरफान नियाजी ने कोई इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस नहीं डाली थी, इस वजह से हमने उसको चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं रखा. आप ये स्क्वाड देखें, दोनों स्क्वाड्स के अंदर ODI T20 ये इरफान नियाजी हैं. सऊद शकील और कामरान गुलाम की जब बात हुई कि आपने उनको ड्रॉप कर दिया, उस वक्त बात हुई चैंपियंस ट्रॉफी में हमने इसलिए रखा था क्योंकि 2-3 महीने में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी. आज दोनों ड्रॉप हो गए. आपकी शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ की बात की कि जी ये 3 ऐसे बॉलर्स हैं जो बेस्ट पेस ट्रियो है, और ये दुनिया की किसी भी टीम के जहाँ पे आप रखें इसको टक्कर देते हैं, पेस ट्रियो को या पेसर्स को. आपने शाहीन को और आपने हारिस रऊफ को ODI क्रिकेट से गिरा दिया, आपने नसीम शाह को T20 क्रिकेट से हटा दिया. तो आपकी तो थॉट प्रोसेस कोई है ही नहीं. आप कहते हो उस दिन 26 फरवरी को कि ये हमारी बेस्ट पॉसिबल साइड है, उसके 6 दिन बाद आप टीम अनाउंस कर रहे हो. आप अपने पुराने प्लेयर्स जिनको आपने एक्स कर दिया था, आप उनको वापस लेके आ रहे हो. आप अपने चैंपियंस कप के परफॉर्मर्स को वापस लेके आ रहे हो. तो इसका मतलब है कि आपके पास तो टैलेंट था, शायद आपको उस वक्त वो टैलेंट नज़र नहीं आ रहा था. तो देखें, बात यह है कि हम इस स्क्वाड को बैठ के या हम इन चीज़ों को बैठ के डाइसेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें ये तो क्लैरिटी मिले कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को रन कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या है. वो आके अपने आप एक दिन कुछ बात करते हैं, अगले दिन अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, और हम बैठे रहते हैं कि अच्छा जी अब ये सोच क्या रहे हैं. ऑनेस्टली मुझे इस वक्त नहीं पता ये क्या सोच रहे हैं. मोहम्मद हारिस प्लान्स में कब थे लास्ट? देखें, I do not know, and it was obviously very shocking, and it's such a positive outcome. Of course, Mohammad Haris is a very talented batter, but वही बात है कि कौन सा ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब हम खेलने वाले हैं, उसकी आपको आइडिया हो सकता है ये स्क्वाड देख के. देखें ना, इसके अंदर रोहा हम अक्सर ये बात करते हैं कि प्लेयर्स को क्या पता है. अब ये जिस तरह सलमान अली आगा हैं, ठीक है, इनको क्या किस हद तक एश्योरिटी है कि ये T20 वर्ल्ड कप तक यही कैप्टन होंगे. इनमें से जो ये जो स्क्वाड हमारे पास 16 का है, इसमें से कितने लड़कों को ये श्योरिटी है कि ये 2026 के T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे. अब टेक्निकली अगर देखा जाए, अगर आपके पास इंक्लूडिंग दीज 5 मैचेस आपके पास कम से कम 28 मैचेस बनते हैं बिफोर द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप. 28 मैचेस बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, और इसमें से आधे से ज्यादा मैचेस आपने पाकिस्तान में खेलने हैं, जो कि सेम कंडीशंस होंगी ऑलमोस्ट जो आपको श्रीलंका में मिलनी है. हाउ लाइकली इज इट कि राइट बिफोर द वर्ल्ड कप जब हम स्क्वाड अनाउंस करेंगे तो यू विल सी सम वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, नहीं वो तो होंगे. आपने अभी नहीं देखा चैंपियंस ट्रॉफी, वो हर टूर्नामेंट से पहले हमारे कुछ प्लेयर्स के कमबैक्स होते हैं, एंड दैट्स बिकम अ ट्रेंड. एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, 28 गेम्स is a fair, it's an adequate time
فریم جس میں آپ نے اپنی ٹیم کے کمبینیشنز, اور T20 میں تو آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے بیکاز آپ اتنے T20s کھیلتے ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی اگلے سال سے پہلے کیا تیاریاں کرنی ہیں, اور آپ کے سب سے امپورٹنٹ بات کہ آپ کے جو اے ٹیم ہے, جو آپ کی مین ٹیم ہے, ان کے بیک اپس کون ہیں, کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں ہم نے یہ دیکھا کہ نہ انیشیل اسکواڈ میں فخر زمان کے علاوہ کوئی بھی اسپیشلسٹ اوپنر تھا, اینڈ ونس فخر زمان got injured, again within the squad there was nobody to step up, and then we had to of course bring in Imam ul Haq. So again آپ کی لائک فار لائک آپ بات کرتے ہیں کلیئرٹی کی. اسد شفیق نے بھی کلیئرٹی جب دی اپنی چیمپئنز ٹرافی کی اناؤنس کرنے کے بعد اسکواڈ, انہوں نے سب سے پہلے ہی یہ ورڈ یوز کیا کہ ہم ہارسز فار کورسز والا حساب کر رہے ہیں اور ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ دین یو لک ایٹ دا اسکواڈ اور وہ نہیں تھا لائک فار لائک کہاں تھا. مجھے شاید ان کو ہارسز فار کورسز کا مطلب نہیں پتا, یا ان کو بس میڈیا ٹیم نے جا کے کہہ دیا کہ آپ ہارسز فار کورسز کہہ دیجیے گا بیکاز یہ ایک بز ورڈ ہے تو یہ بہت بکے گا. آپ ابرار کو دبئی میں کھلا رہے ہو, یہ ہارسز فار کورسز ہے, ایک آپ کا اسپنر کھیل رہا ہے. جہاں پہ ہم انڈیا کی بات کر رہے ہیں, اور جو میں نے جس طرح کہا کہ ٹھیک ہے ان کے پاس ایڈوانٹیج تھا, انہوں نے اس کو میکسیمائز کیا, انہوں نے اپنے 4 اسپنرز کھلائے, اور ان 4 اسپنرز نے کل اگر آپ دیکھیں 38 اوورز کرائے انہوں نے, اور 144 رنز دے کے 5 وکٹس لے لیے. ٹھیک ہے, پورا نیوزی لینڈ کا انہوں نے مومنٹم انہوں نے توڑ دیا وہاں پہ جا کے. تو آپ دیکھیں اینڈ دین اگین آپ کے پاس اس وقت ایک اور جس طرح انڈیا کے پاس سچویشن ہے, پاکستان کے پاس T20 ورلڈ کپ میں سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے میچز سری لنکا میں کھیلنے ہیں. اب آپ اگر T20 ورلڈ کپ کے اندر اب یہ جو آپ کی T20 میچز ہیں پورے سال اس ملک کے اندر پاکستان میں, اگر آپ فلیٹ سرفیسز پہ کھیل رہے ہو تو اس کے اندر غلطی انڈیا کی یا ICC کی نہیں ہے, یہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ وہ کنڈیشنز ریپلیکیٹ نہیں کر رہے جو آپ کو سری لنکا میں ملنی ہے. ناؤ از دا ٹائم کہ آپ ابھی سے, جب بنگلہ دیش کی ٹیم آ رہی ہے, پھر افغانستان کی ٹیم آ رہی ہے, ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے, آپ یہ سرفیسز اسی طرح کی ضروری سی ٹرننگ سرفیسز بنانا شروع کر دیں جو آپ انکاؤنٹر کریں گے سری لنکا کے اندر. لیکن وہی بات ہے, اس کے لیے آپ کو ایک فار سائٹڈ اپروچ چاہیے انفارچونیٹلی, اور ہم نے اس شو میں بھی کافی دفعہ بات کی ہے, ریحان الحق ہمارے ساتھ اکثر یہ بات ٹچ کرتے ہیں کہ ہم بائی لیٹرل سیریز پہ اتنا امپورٹنس پلیس کر دیتے ہیں کہ ہم نے بس وہ جیتنے ہوتے ہیں, ہمیں امیڈیٹ رزلٹ چاہیے, امیڈیٹ جو کہنا ہمیں ونس چاہیے, بیکاز everybody has to answer for themselves, and unfortunately that has happened in the past, and I really hope, we all hope that does not happen T20 World Cup میں, because آپ نے بہت صحیح بات کی ہے سن کہ یہ ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے بیفور دا ورلڈ کپ. بٹ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ ادر نیمز ان دا اسکواڈ جو کہ آئے ہیں. جہانداد خان کو شامل کیا گیا ہے اسکواڈ میں, عثمان خان ہیں, اگین وی آر یٹ ٹو سی the best of عثمان خان. I mean we are all hoping کہ ان کی طرف سے وہ پرفارمنس آئے, وہ جسٹیفائی کریں اپنی پلیس کو. کیا لگتا ہے ابھی یہ بیٹنگ آرڈر آپ کو, اسٹارٹنگ فرام دی اوپنرز ٹل دی مڈل آرڈر, what kind of scores can we expect, because اگر ابھی بھی ہم وہی 170 180 والے مائنڈ سیٹ سے کھیلیں گے ایسن, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ T20 ورلڈ کپ میں جا کے پاکستان ول بی ایٹ پار ود دی ادر ٹیمز, اسپیشلی اگر وہ انڈیا میں جب ٹیمز ہائی اسکورز کر رہی ہوں گی, وی کین نو لانگر بی ان دیٹ 170 180 والا مائنڈ سیٹ. دیکھیں ایک تو چیز ہے کہ میرے خیال سے سب کو اس چیز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے, اینڈ آئی ول بی ویری شاکڈ کہ اگر تھوڑا سا ڈفرینٹ رزلٹ آتا ہے کہ اس ٹور پہ بھی آپ کو لرن ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو آنیسٹلی, کیونکہ دیکھیں آپ کو ایکسپیکٹیشن اس طرح سے رکھنی نہیں چاہیے. ہم نے بہت لرن کر لیا ہے, پلیز ہم نے اور لرن نہیں کرنا. لیکن دیکھیں آپ کی اس وقت یہ ٹیم نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک پروسیس ہے کہ ایک دم سے بچہ بھی جب پیدا ہوتا ہے وہ چلنا نہیں شروع کر دیتا ہے, ہی ٹیکس ٹائم. سیم گوز فار دا ٹیمز ایز ویل. اب آپ نے دیکھیں ایک دم سے آپ نے ریجیکٹ کیا سب کچھ, آپ نئے لڑکے لے کے آئے, آپ نے جو آپ کے پرانے پلیئرس تھے آپ نے ان کو باہر بٹھا دیا. دے ول ٹیک سم ٹائم, ان کو ٹائم لگے گا اپنے اپنے رولز میں ایڈجسٹ ہونے کا. اینڈ دین اگین دیکھیں جو میں پہلے بھی بات کر رہا تھا, خالی وہ 28 میچز نہیں ہیں, PSL بھی ایک اتنا ہائی پریشر ٹورنامنٹ ہے, اینڈ آف کورس ان سب پلیئرس کے اوپر نظریں ہوں گی. PSL میں بھی ان کے پاس ایک وہ چانس ہے کہ وہ اپنی فارم واپس, اسپیشلی وہ پلیئرز جن کی فارمز نہیں لگی ہوئی ہیں. شاداب خان ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, لاسٹ PSL میں بھی ہم نے دیکھا کہ ان کی فارم ڈڈ کم بیک, انہوں نے اپنی ٹیم کو بھی جتوایا, ٹائٹل جتوایا.
پھر آپ جہانداد خان کو دیکھتے ہیں, عرفان خان, پھر ہمیں اور کچھ پلیئرز ایسے ملے, کچھ ایسے بیٹرز ہم نے دیکھے, خواجہ نافع ایک بڑا زبردست نام ہے, اور بھی پلیئرز تھے جن کو ہم نے, عثمان خان انکلوڈیڈ, عبدالصمد انکلوڈیڈ, یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جو پی ایس ایل کے پلیٹ فارم سے ہم نے لاسٹ ایئر دیکھے. اب جو سوال ہے نا وہ تھوڑا سا میں آپ سے آپ کی رائے اس پہ جاننا چاہتی ہوں, کیونکہ یہ ایک بہت ریئل چانس ہے کہ اگر اس پی ایس ایل میں ہمیں پھر سے کوئی بریک تھرو اسٹارز جو کہ obviously ملیں گے, will they be fast tracked, can they be fast tracked and should they be fast tracked to play the World Cup? دیکھیں اگین اگر تو آپ کو کوئی ٹیلنٹ اس کے اندر, فرسٹ آف آل دیکھیں ہماری نا ایک تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے پی ایس ایل کو بھی لے کے, وہ صرف حارث رؤف ہی ایک ایسے ٹیلنٹ آئے تھے جنہوں نے پہلے کوئی اس طرح سے کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی تھی اور ایک دم سے وہ پی ایس ایل سے بریک تھرو ٹیلنٹ تھے. ہمارے جتنے بھی لڑکے پی ایس ایل میں سلیکٹ ہوتے ہیں یہ بیسکلی ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں ون وے اور دی ادر. کسی نے نیشنل T20 کھیلا ہوتا ہے, کسی نے فرسٹ کلاس کھیلا ہوتا ہے, اور وہ وہاں سے ان کو اسکاؤٹس پک کرتے ہیں اور لے کے آتے ہیں. تو وہ کسی نہ کسی شیپ اینڈ فارم میں آپ کے آلریڈی اسٹرکچر میں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے پی ایس ایل, یس پی ایس ایل ان کو ایک سارٹ آف لانچنگ پیڈ بن جاتا ہے, بیکاز ہم لوگ دیکھتے ہی پی ایس ایل ہیں. یہ ملک پی ایس ایل کے علاوہ اور کرکٹ تو دیکھتا نہیں ہے, تو اس وجہ سے سب کو لگتا ہے یہ پی ایس ایل پروڈکٹ ہے. آپ کے جتنے بھی لڑکے آئے ہیں ریسنٹلی وہ سب باقی کرکٹ کھیل کے آئے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی شاہین افریدی بھی پی ایس ایل پروڈکٹ ہے. یار اس سے پہلے اس نے کے آر ایل کے لیے اچھی خاصی پرفارمنس دی ہوئی تھی, وہ اچھا خاصا کھیل رہا تھا, تو فرسٹ کلاس کرکٹ. تو اگین اگر تو آپ کو پی ایس ایل میں کوئی ٹیلنٹ ملتا ہے, یو ہیو اے لاٹ آف میچز ایز آئی سیڈ, اینڈ دین اگین اس کے اندر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کا کمبینیشن ہے اس میں کہاں فٹ ہو رہا ہے. روہا ایک بات جو میں شروع میں کہہ رہا تھا وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو 16 لڑکے آپ نے سلیکٹ کیے ہیں ان کو اپنے رولز پتہ ہے. کیا عبدالصمد آپ نے سلیکٹ تو کر لیا آفٹر چیمپئنس T20 اور چیمپئنس ون ڈے کی پرفارمنسز کے بعد, لیکن کیا ان کو پتہ ہے کہ ٹیم میں میری کون سے نمبر پہ میں نے کھیلنا ہے؟ کیا سلمان علی آغا کو یہ پتہ ہے کہ ان سے کیا ٹیم مینجمنٹ چاہتی ہے یا ان سے بورڈ کیا جاتا ہے؟ شاداب ایز اے بیٹسمین واپس آ رہا ہے, ایز اے بولر واپس آ رہا ہے, کس شیپ اینڈ فارم میں واپس آ رہا ہے؟ حسن نواز کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ حارث رؤف کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ عباس کا کیا رول ہے؟ اصل چیز یہ ہے, آپ جب بات کرتی ہیں نا پی ایس ایل میں ہم شاداب کو دیکھتے ہیں وہ پرفارم کر لیتے ہیں, ریحان یہاں نہیں ہے اس لیے میں ان کی ذرا تعریف اس وقت کر سکتا ہوں. دے نو, اسلام آباد یونائٹیڈ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے کس کس پلیئر سے کس کس طرح پرفارمنسز لینی ہے. آپ فہیم اشرف کو بھی دیکھیں, وہ اسلام آباد یونائٹیڈ میں پرفارم کر لیتے ہیں, آصف علی بھی پرفارم کر لیتے تھے. آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹیم مینجمنٹ نے پلیئر سے پرفارمنس لینی ہوتی ہے, آپ نے پلیئر کو اس کی آپٹیمل پوزیشن پہ کھلانا ہوتا ہے, آپ نے پلیئر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. عثمان خان کی آپٹیمل پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں عثمان خان کی اگر بات کریں, عثمان خان آپ کے ہمیشہ ابھی تک ایک سبسٹیٹیوٹ یا ایک ریزرو کیپر کی طرح جاتے رہے ہیں ٹیمز کے ساتھ, ٹھیک ہے, کیونکہ رضوان جو تھے وہ جسے اوپر کیا نام ہے وہ آپ کے مین کیپر تھے اور وہ چل رہے تھے. اینڈ سیکنڈلی یہ میں نے لاسٹ پی ایس ایل کے بعد لکھا بھی تھا, عثمان خان جو ہیں بیسکلی از اے ٹاپ آرڈر پلیئر, آپ ان کو نمبر 4 پہ کھلاتے رہے ہیں اتنا عرصہ. دس میکس نو سینس, اور اس میں ہم عثمان خان کو بار بار ہم ان کا اسکور کارڈ دیکھ کے وی کین ناٹ جج ہم. اگر ایک پلیئر نے پوری لائف اپنے ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کی ہے تو آپ اس کے بہتری کے لیے جو بات آپ نے کی کہ ہاؤ ٹو گیٹ دا بیسٹ آؤٹ آف یور پلیئرز, یو نیڈ ٹو گیو دیم دیٹ اپرچونیٹی ٹو تھرائیو, not make it more difficult for them, especially at this stage of their career جس میں وہ اپنے آپ کو بھی strengthen کر رہے ہیں, اپنی ٹیم میں نام justify کرنا چاہ رہے ہیں. اور عثمان خان mind you he cannot go back to the UAE and play. So اگر پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ فیل ہوتے ہیں اور کل کو وہ ڈراپ ہوتے ہیں, where will عثمان خان go and who will be responsible for his failure? یہ ایک ڈبیٹ ہے. آپ نے کہا کہ ہمیں پی ایس ایل سے اور پلیئرز بھی مل سکتے ہیں, لیکن میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ پی ایس ایل سے پلیئرز جو ہمیں لاسٹ سیزن سے ملے ہیں یا اس سے بھی لاسٹ سیزن, کیا ان کی ابھی تک ہم نے گرومنگ کی ہے, یا کیا ان کو ہم نے ابھی تک اتنا چانس دیا ہے کہ ہم نئے پلیئرز کو فاسٹ ٹریک کر کے لے آئیں ان دا ٹیم؟ دیکھیں نا بات میں کیونکہ اسٹرکچرز نہیں ہیں, آپ کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو ہی نہیں پتا کہ کیا کرنا. ابھی میں نے جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو 4 کانٹراڈکشنز گنوائی ہیں ایک ہفتے کی پریس کانفرنسز کے درمیان, تو آپ کو پتہ ہے نا, کیونکہ جو لوگ بیٹھے ڈیسیجنز لے رہے ہیں ابھی ان کو ہی شاید اس طرح سے نہیں پتا کہ ہمیں چاہیے کیا ہے. آپ کا بورڈ اس وقت بہت دیر سے ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے اوپر رن ہو رہا ہے. اچھا گیری کرسٹن کو لے آؤ, وہ کام نہیں صحیح کر رہا یا ہمیں پسند نہیں آیا, جیسن گلیسپی کو اس کی جگہ لگا دو, گلیسپی صحیح نہیں ہمیں پسند آیا, اچھا اب ہم
لگا دیتے ہیں عاقب جاوید کو, اسی طرح ہی کیپٹنس, یہ سلمان علی آگے اس وقت چوتھے آپ کے T20 کیپٹن ہیں پچھلے 2 سال میں. تو جب آپ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ سے چیزیں رن کرو گے تو یہی مسئلے ہوں گے آپ کے لیے. دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کہ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ہم انڈیویجولس پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہو جاتے ہیں نا, کہ سائم ایوب نہیں تھے تو اس وجہ سے ہم ہار گئے, فخر زمان نہیں تھے ہم اس وجہ سے ہار گئے. یار اس طرح نہیں ہوتا, آپ نے کرکٹ ٹیمز بنانی ہوتی ہیں. ایک پوائنٹ پہ یہ بھی تھا احسن کہ دل پاکستان نہیں ڈی جے نے پلے کیا, وہ بھی ایک ریزن ہم نے سننے کو ملا تھا, تو اٹ کین بی اینی تھنگ. سو آپ دیکھیں میں اس وقت انگلینڈ کی بات نہیں کرتا کیونکہ انگلینڈ کی بہت بات ہو چکی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کیا روہت شرما ہمیشہ سے ایسے بیٹنگ کرتے تھے جس طرح سے وہ 2 سال سے کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں. کیا ولیمسن ہمیشہ سے پیڈل اور ریورس سویپس کھیلتے تھے؟ اب وہ کھیل رہے ہیں. وراٹ کوہلی نے سویپ ڈیولپ کر لی. کیا ٹریوس ہیڈ 2022 سے پہلے واقعی اس طرح کے بیٹسمین تھے جو اب بن گئے؟ نہیں. آپ نے اپنے پلیئرز کو جا کے بتانا ہوتا ہے دس از واٹ وی وانٹ فرام یو, اور آپ نے ان کو پھر اس کے بعد ان کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے مسئلہ, پاکستان کے اندر یہ نہیں ہے, اور یہ مسئلہ ہے ہمارا. ہمارے بہت سارے مسئلوں میں سے ایسا اب ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اوپن کون کرے گا. T20 میں بھی ہمیں یہی مسئلے دیکھنے کو مل رہے ہیں. Who are your openers in this squad? if you ask me, مجھے دیکھیں مجھے اس وقت یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ کا اوپنر, آپ کا فرسٹ چوائس کیپر کون ہے اس میں, کیا وہ عثمان خان ہے یا محمد حارث ہے؟ کیونکہ ان میں سے ایک ہی آپ کے اوپن کریں گے, پھر اس کے بعد شاید میرے خیال سے عمیر بن یوسف کو کھلائیں گے. محمد حارث ہی کریں گے کیپ, وہ تو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ چوائس وہی ہوگا. بٹ دین اگین کیا آپ عثمان خان کو ایک دم سے, جنہوں نے ورلڈ کپ بھی کھیلا, انڈیا کا میچ بھی کھیلا, کیا آپ ان کو سائڈ پہ کر دیں گے؟ اور ایک دم سے محمد حارث جن کو آپ واپس لے کے آ رہے ہیں, وہ کیا آپ کے فرسٹ چوائس کیپر بن جائیں گے؟ سو واٹ میسج اٹ گیوز ٹو عثمان خان؟ بٹ اگلا کون ہے اوپنر آپ کا عثمان خان؟ میرے خیال سے عمیر بن یوسف وڈ بی دا سیکنڈ, کیونکہ انہوں نے زمبابوے کے اندر بھی ٹاپ آرڈر کے اندر کھیلا ہے, کوئٹہ گلیڈیٹرز میں ہی از اے ویری گڈ پرفارمر, ڈومیسٹک میں ہی بہت اچھا کھیلتے ہیں, فرسٹ کلاس کے رنز ہیں, ہی از اے بیٹسمین ود گڈ ٹیکنیک, سو ہی کین بی یور سیکنڈ اوپنر اینڈ ہی شوڈ بی یور سیکنڈ اوپنر ان دس اسکواڈ. اس کے بعد آف کورس عبدالصمد آ جائیں گے آئی تھنک 1 ڈراپ کے اوپر, یا پرابلی شاداب خود آ سکتے ہیں. لیکن اگین یو نو ایٹ دس اسٹیج یہ ٹیم بنانا بہت مشکل ہے کہ ابھی تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے خیال ہے ہمیں اے آئی یوز کرنا پڑے گا. اے آئی کو یہ اسکواڈ دیتے ہیں, لیٹس سی واٹ اے آئی کمز اپ ود. آپ لوگ اپنے اپنے فونس پہ بھی یہ کریں اور دیکھیں کیا کمبینیشن بنا کے دیتے ہیں اے آئی, بیکاز یو آر مور لائکلی ٹو گیٹ اے reasoning and logic from AI than probably this. But before we go to the break, quickly, Ehsan, do you mind losing 5-0 to New Zealand? If it means کہ آپ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو اینڈ آپ اپنے کمبینیشنس کو ٹیسٹ آؤٹ کر رہے ہو. آئی ول مائنڈ. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اب آپ نے کہہ دیا کہ یہ لڑکے ہم نے آگے لے کے جانے ہیں. آئی ول مائنڈ بیکاز آپ نے جو 4 مارچ کو پریس کانفرنس کیا, آپ نے کہا کہ یہ برانڈ آف کرکٹ اب ہم نے کھیلنا ہے, اس وجہ سے ہم شاداب خان کو واپس لے کے آ رہے ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ویری شیور کہ یہ ہمارے پلیئرز ہیں. تو اب آپ جیتے ہیں, اب آپ نہیں جیتے نا, لیکن 5-0 نہ ہاریں. چلیں 3-2 4-1. A short break here. When we come back, we'll take a look at the ODI squad as well.